بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح کی خطاطی کی تصویر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلی رائے ابن کثیر جیسے بہت سے مورخین کی ہے، جنہوں نے حضرت نوح کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آنے والا لکھا ہے، ان پر سلامتی ہو۔ تاہم بعض علماء کا خیال ہے کہ سورہ نساء کی آیت 163 بتاتی ہے کہ وہ ادریس سے پہلے آئے تھے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کی طرف وحی کی ہے۔ ہم دونوں آراء پیش کرتے ہیں تاکہ آپ علم کے طالب علم کی حیثیت سے آگاہ ہوں۔ مکمل یقین کے ساتھ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی شواہد نہیں ہیں، اور نہ ہی اس معاملے کی مزید تحقیق کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ یہ تحریر اس تناظر میں لکھی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے بعد آئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان پھنسے ہوئے تھے، چونکہ ان میں سے کسی اور آدمی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا، اس لیے لوگ رہنمائی کے لیے ادریس علیہ السلام کے نیک ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ ان نیک آدمیوں کا احترام کرتے تھے اور ان کی پیروی کرتے تھے، اور جب بھی انہیں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا ان سے مشورہ کرتے تھے۔ آخر کار جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، متقی لوگ بھی گزرتے گئے، مسلمانوں کے پاس پھر رہنمائی کے لیے کوئی رہنما نہیں رہا۔ وہ ڈرتے تھے اور ڈرتے تھے کہ کہیں وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ شیطان، جو نہایت چاق و چوبند نظروں سے دیکھتا رہا، مرد کے بھیس میں آہو بکا کرنے والے مردوں اور عورتوں کے پاس آیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کی، اگر ہم ان سالے مردوں کے مجسمے بنا لیں تو یہ ہمیں اپنی عبادت میں زیادہ پسند آئے گا اور ہمیں اس کی یاد دلائے گا۔ مردوں نے اتفاق کیا کیونکہ انہوں نے اپنے سب سے زیادہ متقی مردوں کے مجسمے بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ یہ یقیناً انہیں اللہ کو یاد کرنے اور نیک کام کرنے کی ترغیب دینے میں مدد دے گا۔ شیطان نے کامیابی سے اپنا بگاڑ کا بیج بو دیا تھا۔ صبر نہیں تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ انسان کو دوسرے کی عبادت کرنے کے لیے حاصل کرنا ایک سست عمل ہے۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل کے لوگوں نے شیطان کے کان میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ مجسمے ان کے لیے نیکی لے کر آئے۔ اس طرح بت پرستی نے انسان کے دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئیں اور اللہ نے مشرکین کو حق کی طرف لوٹانے کے لیے ایک نبی بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقدس کام کے لیے جس نبی کا انتخاب کیا گیا وہ نوح علیہ السلام تھے، یہ حضرت نوح کے مساوی یہودی عیسائی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے وفادار شاگرد کو فصاحت و بلاغت اور بے پناہ صبر و استقامت سے نوازا تاکہ وہ اپنے فرض کو کامیابی کے ساتھ نبھا سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو وسیع کائنات کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنا شروع کیا، اپنے انہیں رات اور دن، ستاروں اور چاند، نباتات اور حیوانات اور آسمان و زمین کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ انسان کو اللہ نے اس کی تسبیح اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ دنیا کے اسرار صرف ایک سچے خدا کے وجود کا ثبوت ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ شیطان نے انہیں بتوں کی پوجا کرنے کے لیے گمراہ کیا ہے اور انہیں خبردار کیا ہے کہ اگر وہ اپنی بت پرستی جاری رکھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے سخت عذاب آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بڑی الجھن اور صبر سے ان کی بات سنی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں سب سے زیادہ دکھی اور مایوس لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے امید اور سکون تلاش کرنا شروع کر دیا،
और रफ्ता रफ्ता इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए, जबकि अमीर लोग गुस्से से देखते रहे। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, हम आपको अपने जैसा आदमी ही देखते हैं। निबानो लोग नाराज तस्वीर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझा दिया कि वो यकीनन एक इंसान है और अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर एक इंसानी रसूल का इंतखाब किया है, क्योंकि जमीन पर सबसे ज्यादा इंसानों का कब्जा था। और अगर फरिश्ते जमीन पर काबिज होते तो अल्लाह सुभान अल्लाह के यकीनन कोई फरिश्ता रसूल भेजता ताकि इसका पैगाम पहुंचाए। नूह अलैहिस्सलाम मालदारों की जहालत से बखूबी वाकिफ थे। वो जानता था कि उन्हें यह समझाने के लिए पुरसुकून रहना होगा कि मादियत परस्ती अल्लाह के नजदीक बेकार है, सुभान अल्लाह व ताला, और ये वही है जो किसी के दिल में है जो उसके लिए वाकई अहमियत रखता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको जवाब दिया, ए मेरी कौम, मैं इसके लिए कोई माल नहीं मांगता, मेरा अजर अल्लाह के सिवा किसी पर नहीं है। मैं इन लोगों को नहीं निकालूंगा जो ईमान लाए हैं। बेशक वो अपने रब से मिलने वाले हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम लोग जाहिल हो। ए मेरी कौम, अल्लाह के मुकाबले में कौन मेरी मदद करेगा अगर मैं उनको भगा दूं? क्या तुम गौर नहीं करोगे? और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह सुब्हाना व ताला के खजाने हैं, और ना ये कि मैं गैब जानता हूं, और ना मैं ये कहता हूं कि मैं फरिश्ता हूं, और मैं इन लोगों के बारे में नहीं कहता जिन पर तुम्हारी निगाहें अल्लाह ताला की तरफ झुकती हैं। साबह ने आवेतेलिया, उनको कोई भलाई नहीं देगा। अल्लाह सुभान अल्लाह जानता है कि उनके बातिन में किया है। इस सूरत में मुझे यकीनन जालिमों में से हो जाना चाहिए। मुशरिकीन गज़बनाक थे। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की मुसलसल तबलीग और दलाइल को बहुत देर तक बर्दाश्त किया। उन्होंने गुस्से से नूह अलैहिस्सलाम को ललकारा, ए नूह अलैहिस्सलाम, तुमने हमसे झगड़ा किया और हमसे झगड़े को तूल दे दिया। अब हम पर ले आओ जिसकी तुम हमें धमकी देते हो, अगर तुम सच्चे हो। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह सुभान अल्लाह तुम पर अजाब लाएगा, अगर वो चाहेगा, फिर तुम बच नहीं सकोगे। और मेरी नसीहत तुम्हें नफा नहीं देगी, खा मैं तुम्हें नसीहत करना चाहूं। अगर अल्लाह तुम्हें गुमराह करना चाहता, वो तुम्हारा रब है और उसी की तरफ तुम्हें लूट कर जाना है। नबी नूह बुत परस्तों की तस्वीर। नबी नूह लोगों की दौलतमंद तस्वीर। कुफ्फार जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम के साथ सब्र व तहम्मुल से काम लिया था, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तबलीग से डराने के लिए इनकी तौहीन की। वो कहने लगे, बेशक हम तुम्हें सरी गुमराही में देखते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने तहम्मुल से जवाब दिया, ए मेरी कौम, मुझ में कोई नक्स नहीं, लेकिन मैं रब अल आलमीन का रसूल हूं। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचाता हूं और तुम्हें मुखलिसाना नसीहत करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हर वो बच्चा जो समझ की उम्र को पहुंचता था, उसको हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तालीमात के खिलाफ वाज़े तौर पर तंबीह की गई थी। जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते तो वो उनसे दूर भाग जाते थे। उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की मौजूदगी से बचने का हर बहाना तलाश किया। कुछ ही देर में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि काफिरों की तादाद तेजी से बढ़ रही है, जबकि मोमिनीन की तादाद में कोई तब्दीली नहीं आई। वो अपने लोगों के लिए बहुत परेशान था और उनके लिए एक खौफनाक मुसीबत का अंदेशा था, लेकिन इसके पास कोई चारा नहीं था। चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, मेरे मालिक, उन्होंने मेरी नाफरमानी की है और उसकी पैरवी की है, जिसके माल और औलाद ने उन्हें सिर्फ नुकसान के सिवा कुछ नहीं बढ़ाया। उन्होंने एक जबरदस्त साजिश की है। उन्होंने कहा है कि तुम अपने माबूदों को न छोड़ो और ना विद, सवा, यगूस, यौक और नस्र बुतों के नाम को छोड़ो।
बेशक उन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया है। ए अल्लाह, काफिरों को कोई इजाफा न करना। नबी नू लोगों की दौलतमंद तस्वीर। शहर की हुदूद से बाहर, समंदर से दूर, हजरत नू अलैहि अस्सलाम ने फरिश्तों की मदद और रहनुमाई से दिन रात कुश्ती की तामीर शुरू की। लोगों के मुसलसल तंज के दरमियान कुश्ती की तामीर जारी रही। उन्होंने हजरत नू अलैहि अस्सलाम पर तंज करते हुए कहा, ए नू, क्या कारपेंटर आपको नबूवत से ज्यादा पसंद है? तुम समंदर से इतनी दूर कुश्ती क्यों बना रहे हो? क्या आप उसे पानी की तरफ घसीटने जा रहे हैं या हुआ इसे आपके लिए ले जाएगी? हजरत नू अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन जलील व खार होगा। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फिर नू अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि जब उनके घर का तन्नूर पानी उगने लगे तो मोमिनीन को जमा करके कुश्ती में सवार होना, क्योंकि ये सैलाब के आगाज की पहली अलामत थी जो काफिरों को तबाह कर देगी। कुछ ही देर बाद वो खौफनाक दिन तुलू हुआ जब हजरत नू के घर के तन्नूर से पानी निकलने लगा। नू जानता था कि अब किश्ती पर सवार होने का वक्त आ गया है। नू अलैहि अस्सलाम मोमिनीन के साथ जानवरों, परिंदों और हशरात अलर्स के जोड़े भी साथ ले गए। जिन लोगों ने नू के अजीब व गरीब सुलूक को देखा वो फिर हंस पड़े और कहने लगे, नू उसके सर से निकल गया होगा। वो जानवरों के साथ क्या करने जा रहा है? कुछ ही देर में गजबनाक आसमान से मूसलाधार बारिशें बरसने लगीं और जमीन के हर शिगाफ से पानी बहने लगा। समंदरों ने एक बार खुश्क जमीन को मुकम्मल तौर पर फतह करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाया। हजरत नू अलैहि अस्सलाम ने इस खौफनाक आफत का मुशाहिदा किया जो उनकी कौम पर नाजिल हुई थी। वो जानता था कि काफिरों को अल्लाह के गजब से बचने का कोई मौका नहीं है। काफिरों में हजरत नू की बीवी और बेटा भी थे जिन्होंने उनकी कुश्ती में सवार होने से इनकार कर दिया। नू अलैहि अस्सलाम ने बेताबी से अपने बेटे को पुकारा, ए मेरे बेटे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना हो जा। नू अलैहि अस्सलाम के जाहिल बेटे ने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर जाऊंगा, ये मुझे पानी से बचाएगा। नू अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय इसके जिस पर वो रहम करे। कुछ ही देर में नू का बेटा गुस्से की लहरों की लपेट में आ गया जो दोबारा कभी नजर नहीं आएगा। जैसा कि हिदायत की गई थी, हजरत नू अलैहि अस्सलाम मोमिनीन के साथ कुश्ती से उतरे और बचाए गए जानवरों, परिंदों और हशरात अलर्स को सब्जाजार पर छोड़ दिया। हजरत नू अलैहि अस्सलाम ने अपनी पेशानी जमीन पर रखी, अपने रब को सजदा किया और उसकी रहमतों और नेमतों का बेहद शुक्र अदा किया। मोमिनीन ने अल्लाह सुब्हाना व तआला के शुक्रगुजार थे कि उन्होंने उन्हें खौफनाक आजमाइश से महफूज रखा और अल्लाह सुब्हाना व तआला के शुक्रगुजारी के तौर पर एक दिन रोजा रखा। कुरान की आयत जो हजरत नू अलैहि अस्सलाम का जिक्र करती हैं। कल 47 मुख्तलिफ मिसालें हैं जहां अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान में बरा रास्त हजरत नू अलैहि अस्सलाम की तरफ इशारा किया है। यहाँ हम आपको दरियाफ्त करने के लिए सबका हवाला फराहम करते हैं।